from the commentary box, and Ashik bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time of what a delivery. What and a delivery there from Ashik. Outstanding. But I think the batsman is doing a mistake here, is just leaving the gap between bat and pad. Look at that one in the replay. The huge gap. When you were going for the drive, then almost we can see that was a gap is created. And because of that, he's created that gap between bat and pad. And Ashik bowled a fantastic off-cutter. And the ball is hitting the stumps. So first wicket of... Bowling side is so strong, so they need something like 50 on the board. This time again Jatabat carrying, and he's gone back to the pavilion. He was really not looking good in the start of the innings itself, so he was struggling and at last he perished. Exactly, it was a struggle innings comes to an end of Ashraf there. But one thing I really not impressed with these two opening batsmen, that every time they're looking for the big shot, but not really looking for the rotation of strike. When you fail to hit the big shot, you need to quickly realize that you cannot underestimate even singles as well. That's why I'm always comparing singles into raindrops. Even it was a very small in a size and shape, but the continuous falls of raindrops makes the river overflow, and that's what's really lacking in this opening batsman, that every time they're looking for the big shot, they're just neglecting the singles and rotation of strikes. As far as the present cricket is concerned, as Asha dealt it. That was a great delivery. What a delivery that was the face, I will tell you. Nothing but the speed of the delivery, I will tell you. Beats defense of Iqbal. Ball almost passing between his bat and leg. And hitting his leg stump. What a great delivery there from Ashad. Now I think the pressure is building up for the batsmen of KFC Kodigal, and the gate is really up. Fantastic performer for KFC Kodigal, Chetan, who can bat in any position. One more wicket, wicket number 3 of Arshad. This time not of this man, Arshad. He's picked up a wicket here, and KFC Kodigal into the back foot now, because the Tazuddin looks pretty good in the middle. The settled batsman coming as opener for the side. It's too glorious. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 5ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಕೀಮ್ ಅಡ್ಡೂರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಈ ಅಜ್ಮಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಕೀಮ್ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹಕೀಮ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಗೆ. ಹಕೀಮ್ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಗೂಟ ಉರುಳಿಸಿದೆ ಈ ಚೆಂಡು. ಅಜ್ಮಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಕೀಮ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ. ಪ್ರಥಮತ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್. ಫಾರೂಕ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅರ್ಷದ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಬಿರುಸಿನ ಎಸೆತದಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೂದಲೆಲೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಹಕೀಮ್ ಅಡ್ಡೂರು ಇವರಿಂದ. Tanveer played a big shot. Oh, this time is gone. Brilliant delivery, and Tanveer back to the pavilion.
ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶಾಕಿರ್ ಔಟ್. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶಾಕಿರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पाएंगे सभी 4 गेंदों पर 10 रन और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश पर अपनी विकेट गंवा बैठे शरण की गेंदबाजी. शुरुआत की ओवर पर जुबैर केवल 3 रन के साथ अपने ओवर को संभाले थे और दूसरी ओवर पर जब जितने विश्वास के साथ अश्विन राज के हाथ पर गेंद सौंपे गए, निश्चित रूप से मानना होगा अश्विन राज के इस कमाल की गेंदबाजी को. जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी पर इस मैच के पूरे नियंत्रण पाकर हमेशा की तरह अश्विन राज हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी के साथ अपनी टीम की विश्वास को, अपनी टीम की जीत की विश्वास को जिंदा रखे हैं इस मैच में. 3 गेंदों पर 10 रन. कई सारे मिसाल हमने देखे हैं, 3 गेंदों पर जब 10 रन की जरूरत होते हैं तब छक्के गिरे हैं. लेकिन यहां पर तो अश्विन राज के बाद शरण. ये देखिए शरण अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं. पिछली बार भी चैंपियन बने थे यंग फ्रेंड्स उर्वा. ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 1 के चैंपियन के ताज अपने सर पर लेकर पूरे कर्नाटका अंडरआर्म क्रिकेट पर यह ऐलान किया था कि हाँ मैं चैंपियन हूं क्योंकि मेरे पास वो काबिलियत है, वो हुनर है. और इस साल भी देखिए किस तरह से यंग फ्रेंड्स उर्वा कर्नाटक विभाग की हर एक टीम को हराकर जिस तरह से वो फाइनल पर प्रवेश किए हैं और फाइनल पर भी देखिए SNNC को किस तरह से बांध के रख रहे हैं. और इस बार और एक विकेट यहां पर पूरी तरह से इस मैच के ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश. 90% इस मैच के जो फलितांश जो है यंग फ्रेंड्स उर्वा के कंधों पर आकर गिरे हैं. लेकिन कभी कभी अजूबे बन जाते हैं. हमने सामाजिक जालतान पर देखे हैं आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी किसी टीम को, तब गेंदबाज लगातार 6 वाइड डालकर विपक्षी टीम को जीत सौंप दिए थे. तो ऐसे में यहां पर शरण अच्छी गेंद और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा बने ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद, बोल्ड आउट, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त पहुंची अलोंग द कार्पेट और इस गेंद पर बल्लेबाज इससे पहले के कुछ करे गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. त्यागराज जिन्होंने पिछले मैचेस में एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, दुर्भाग्यवशात इस मैच में वो उस सफलता के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाए और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए और इसी के साथ यह विकेट नंबर दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद टॉप एज पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. थोड़े से सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर बोलना चाहता, गेटिंग सम एक्स्ट्रा बाउंस, गॉट स्टॉपेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और स्क्वायर लेग फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. फ्रेंड्स कुत्तार इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ. 9 for the loss of 3 wicket in the over number 2 and this is an absolutely testing time progressing here for the batsmen of Friends Kuttar now. They lost their 3 top enders wickets for just adding 9 runs on the board. This is an absolutely disaster start for them. कर पाते हैं या नहीं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार महेश. रिलवान दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार और यहां पर यह गेंद की बात की जाए तो देखने वाली बात यह है कि गेंद किस तरीके से अंदर क्यों रही. हालांकि पूरी तरह डिफेंसिव मूड में थे महेश. देखते हैं क्या हुआ था विकेटों के बीच. दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद फेंकी गई थी. देखिए एब्सोल्युटली परफेक्ट. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, पिचिंग ऑलमोस्ट राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड पास्ड बिटवीन हिज bat and pad and bat and leg in fact and stuck to his midland off stump and his middle stump has been uprooted.
जितने हम इनके तारीफ करते हैं, इनकी पूर्व क्रिकेट के बारे में कहते हैं, इनकी पिछले मैच के बारे में कहते हैं, ये देखिए अब तो कहने पड़े यहां पर मंजुनाथ आउट हो चुके हैं। मंजुनाथ के विकेट यहां पर गिर चुके हैं, आरंभिक जोड़ी यहां पर टूट चुकी है और जश्न मना रहे हैं गोरी यंग बॉयज। और जश्न मनाने की ही बात है ये, क्योंकि मंजुनाथ को वापस भेजे हैं गोरी यंग बॉयज। मंजुनाथ अगर आखिरी मौके तक क्रीज पर टिके रहते हैं तो निश्चित रूप से ये लक्ष्मी मंजुनाथ जैसे खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल कभी भी ये कष्ट वाली बात नहीं बने हैं। और आज वाकई जबरदस्त पारी निभाकर रियाज गोरी के साथ अपने बेहतरीन साझेदारी निभाकर टगआउट पर वापस आ चुके हैं। तो अब मंजुनाथ के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी 33 नंबर के जर्सी के साथ अजय क्रीज पर आए हैं। 11 गेंदों पर अब 25 रन के दरार। 11 बॉल 25 रन टू विन दिस मैच, 23 रन टू विन दिस मैच। माफ कीजिएगा, 23 रन की जरूरत है। 23 रन फ्रॉम 11 बॉल्स। और अच्छी गेंद, क्या धुआंधारी गेंदबाजी यहां पर, क्या जबरदस्त गेंद कहने होंगे। पिछली गेंद पर मंजुनाथ को वापस भेजे और उसके अगले ही गेंद पर नए खिलाड़ी को, अजय को यहां पर वापस भेज चुके हैं गेंदबाज फयाज। निश्चित रूप से आजकल के हर एक मैचों पर भी फयाज अपने कदर दिखा रहे हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। फयाज, और इस बार भी ये रॉकेट डिलीवरी देखिए आप रिप्ले में दोबारा इस गेंद को। वाह भाई वाह, फयाज जी वाकई गेंदबाज हो तो आपकी तरह। अंडरआर्म गेंदबाजी की ये सच्चे प्रतिबिंब है, ये आईना है, ये अयाज। क्या तारीफ करने होंगे फयाज। मुझे फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। विकेट की सफलता के बाद नए खिलाड़ी मुबीन के खिलाफ गेंदबाजी करना होगा यहां पर मुजीब। और इस बार भी क्या शानदार गेंद यहां पर, क्या घुमावट दिखी पिछली गेंद पर। बल्लेबाज तो पूरी तरह से चौंक चुके हैं यहां पर एनएमसी कुंपर मजल के बल्लेबाज। मुबीन को पूरी तरह से चौंकाते हुए लगातार दोनों गेंदों पर विकेट हासिल की है मुजीब ने। यहां पर हैट्रिक के मौका, एसएफसी ट्रॉफी 2021 पर पहली मौका प्राप्त हो रहे हैं मुजीब को हैट्रिक पाने की। सुरेश अन्ना के याद निश्चित रूप से हमें बार बार आते हैं, जो गोरी यंग बॉयज के पीछे एक ऐसे मजबूत फिल्डर बनकर खड़े थे। दुर्भाग्यवशात आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद जब भी गोरी देखते हैं दर्शक मैदान में तो निश्चित रूप से उस सुरेश अन्ना की याद बार बार आ जाते हैं दर्शकों को। तो उनकी आशीर्वाद हमेशा जुड़े रहेंगे गोरी यंग बॉयज के बाद। यहां पर एनएमसी कुंपर मजल इस गोरी यंग बॉयज के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन शुरुआत के 2 विकेट गिरे। और इस बार भी क्या शानदार, तालियों के हकदार, हैट्रिक के हकदार बने यहां पर, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। इरफान तैयार होंगे अब अपनी कैमरा को लेकर। मुजीब की इस लाजवाब पराक्रम के हिस्से को, उस किस्सा को निकालते हुए अब तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक, सामाजिक जालतानों में अब तो जरूर वायरल हो जाएंगे मुजीब जी आपके ये गेंदबाजी। इसे दिखाने की ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और इस बार क्या शानदार गेंद, वाह भाई वाह। शाहनवाज जैसे खिलाड़ी को इस तरह से चौंकाना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। मुजीब इसीलिए महारथियों में माने जाते हैं, इसलिए बड़े दर्जा के खिलाड़ियों में माने जाते हैं मुजीब द्वारा। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा